your presence at today's event organized in collaboration with the Bank of Punjab. Today's gathering reflects the importance that Pakistan attaches to its overseas community and provides an opportunity to discuss how initiatives such as Roshan Digital Account can further strengthen the economic connection between overseas Pakistanis and their homeland. I would like to thank you for joining us this evening. We look forward to an engaging and productive discussion. It is now my privilege to invite His Excellency Mr. Amir Ahmad Atozai, Consul General of Pakistan in New York, to deliver his welcoming remarks. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mr. Ridwan Saeed Sheikh, Ambassador of Pakistan to the United States of America, Mr. Zafar Masood Saab, President and CEO of the Bank of Punjab and Chairman of the Pakistan's Banks Association, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening to you all. It gives me great pleasure to welcome you all to the Consulate General of Pakistan in New York for this important event, Unlocking Diaspora Capital, organized in collaboration with the Bank of Punjab. I would like to extend a particularly warm welcome to our chief guest, His Excellency Ambassador Ridwan Saeed Sheikh Saab, whose presence underscores the government of Pakistan's commitment to engaging with overseas Pakistanis across the United States of America. I also wish to express our sincere appreciation to Mr. Zafar Masood Saab and his team at the Bank of Punjab for partnering with us in organizing this outreach initiative. Ladies and gentlemen, the Pakistani diaspora is one of our nation's greatest strengths. Across the United States, Pakistanis have distinguished themselves as entrepreneurs, professionals, academics, healthcare workers, public servants, and community leaders. Through their hard work and achievements, they continue to enhance Pakistan's image while making meaningful contributions to the societies in which they live. At the same time, our overseas Pakistanis remain deeply connected to their homeland. Their contributions to Pakistan's economy are significant and extend well beyond remittances. Through investment, philanthropy, knowledge transfer, and professional engagement, they play an important role in supporting Pakistan's economic growth and development. As representatives of Pakistan's abroad, one of our key priorities is to strengthen these bonds and facilitate greater engagement between overseas Pakistanis and the institutions back home in Pakistan. We firmly believe that our diaspora is not only a stakeholder in Pakistan's future, but also an important partner in its progress and prosperity. It is in this context that initiatives such as the Roshan Digital Account assume particular significance. The platform has provided overseas Pakistanis with convenient access to banking, investment, savings, and financing opportunities in Pakistan, enabling them to participate more directly in the country's economic development. Ladies and gentlemen, today's event provides a valuable opportunity to learn more about these offerings directly from one of the Pakistan's leading financial institutions and to engage in a constructive dialogue on how we can take advantage of these services being offered back in our country. The Consulate General of Pakistan in New York remains committed to supporting initiatives that promote economic engagement, financial inclusion, and stronger connections between Pakistan and its diaspora. We will continue working closely with our partners to facilitate meaningful interactions that benefit both overseas Pakistanis and our country. I am confident that today's discussion will be informative and productive, and that it will generate valuable ideas for further strengthening the partnership between Pakistan and its overseas community. Thank you all once again for joining us this evening at the Consulate. I wish you all a successful event and an enjoyable evening at the same time. Pakistan, Zindabad, I thank you all. Thank you, sir.
I now have the honor of inviting His Excellency Mr. Rizwan Saeed Sheikh, Ambassador of Pakistan to the United States, to address this gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening. First of all, let me start by thanking the CEO and President of the Bank of Punjab and also the President of Pakistan Banks Association, Zafar Masood Saab, for bringing this event, this important event here, and of course to our host, Mr. Amir Ahmad Atazai, the Consul General, the beloved Consul General of Pakistan here. And then let me thank you all for deciding to spend the first part of a long weekend with us. The fact that you are spending this long weekend in your homeland with us indicates your love for your motherland. And this is what we are here to talk about. And frankly, honestly, candidly, tap. That's what today's event is about. Now, in the past 1 year, the world has seen the best of Pakistan. We were known for a different reason. We were, about a year back, before that 88-hour encounter with our arch rival in May 2025, we were the Pakistan that the world knew, the Pakistan that was portrayed, motivated, safe haven for something different. In a little over a year, the world has seen Pakistan, the Pakistan that they would want to know, a safe haven for capital, for commerce, for trade. We have demonstrated the best of our defense and diplomacy. Our leadership has sustained a high profile over the past year. And what has recently concluded and happened has been as difficult as it is useful, as it is consequential, as it is impactful in terms of both politics and economics, not just for Pakistan, not just for the region that we live in, but for the whole wide world. I mean, it impacts, we have seen whatever happens in our region, whatever happens around Pakistan, whatever Pakistan finds itself in, or whatever Pakistan engages with, impacts lives and livelihoods in the whole wide world. So we have proven through diplomacy, our first line of defense, and through defense, which is our second line of defense, that we are there. Pakistan is here and now a force to contend with. But this all can be fleeting. This all can be a passing moment, and history is replete with enough examples of such phenomena, such manifestations, such exposures that have unfolded themselves and the world has witnessed over the march of civilization. The world has seen. This is a moment that is perhaps, for us at least, for our generation, people on the planet today and Pakistanis in particular,
It's a generational opportunity. And it's one of its kind in our 8 decades long history as an independent nation state. In terms of opportunities, in terms of possibilities, in terms of potential, has never ever been that promising, that good looking. But good looks are not enough. You have to make good on them. So this is the opportunity to make good on what looks good. That is something that today's event is about. This is a once in a lifetime, a once in national life opportunity. देखिए ऐसा मौका अगर दोबारा आएगा भी ना, शायद आए, ये नहीं कह सकते, दुनिया चल रही है। अगर ऐसा मौका दोबारा आया भी तो ना आप जिंदा होंगे ना मैं जिंदा हूँ, हमारे लिए नहीं आएगा। This is our opportunity in our lifetimes to make good on what looks good. We have to seize this moment, we have to capture it. We have to arrest this opportunity and make it sustainable, tenable over an extended period of time, and for that we need economic strength. The concept of Bunyanum Marsus is incomplete without. Defense may be impregnable, but it can only stay impregnable if we have that economic base that can sustain it. And for that to happen, as the world has seen over the past 3-4 months, this is the country which makes things happen. And on the political side of it, that's what we have witnessed. But this is the country. Whatever you produce, whatever you want to sell, whatever maybe even you import or export or seek an investment from, this is the place. This country has an insatiable desire for goods, services, commodities. No single country in the world can satiate the appetite of this country in terms of consumerism. We all know it's, if you include my previous stay here, I am into my 7th year of stay in the United States, maybe quarter to 2 years this time around, and as the Deputy Ambassador previously from 2015 to 19. So we have seen enough in terms of manifestations like people buying furniture today and maybe 10 months down the line, as soon as the new series appears, they will put it outside and buy new one. So if you can't do business here, then you are missing out on something very, very significant and important, and the opportunities to grow. I have people here from the IT sector that I can see, and they just entered, and I acknowledge their presence, who have been part of Pakistan's IT promotion. In this last just 1 year, Pakistan's IT exports to United States grew by 39.7%. Because of whole wide world, and it impacts the potential. Whatever happens in our region, whatever happens around Pakistan. Now, Pakistan's potential is something which has been cliched for a while. Pakistan's potential. We have been listening to it for a long, long time. This is the opportunity to translate that potential into a kinetic form through kinetic action. And let's come together there. That is where unlocking the potential of the diaspora capital, the diaspora potential. Capital is just one manifestation, one avenue of engagement comes in. I have, at least in terms of just one anecdote, a Pakistani who mentioned to me last month, कि Ambassador Saab, I was a bit shy of mentioning that I am a Pakistani. So I used to say कि मैं कीनिया में पैदा हुआ था और पाकिस्तान में पला बढ़ा हूँ.
कीनिया में पैदा हुआ था और फिर आई वॉज ब्रॉट अप इन पाकिस्तान, बट फॉर द पास्ट 2 months आई प्राउडली से कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जिस मुल्क ने आपको ये शनाख्त, ये तशख़्ख़ुस, ये पहचान दी है, जिस मुल्क ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इस मुल्क में भी आकर अपनी अपनी ज़िंदगी बना सकें, मेरे समेत जिसने यहाँ जितनी भी बड़ी कार्रवाई की है, जिसने जितना भी बड़ा तीर मारा है इस मुल्क में आके, आया तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे था ना, इससे इनकार कर सकते हैं? तो मदरलैंड, माँ की अगर तबीयत नासाज हो तो जो चॉइसेस दो ही होती हैं, दो ही उसका हम इजहार देख रहे हैं, उसकी तरफ मैं हल्का सा इशारा करना चाहूँगा कि अगर माँ की तबीयत नासाज है तो क्या बेहतरीन रवैया ये है कि आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, या ये है कि कुछ मदद करें, इलाज करवाएं, क्योंकि बहरहाल उसी ने आपको पाला है, उसी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ। सो देयर इज़ नो पे बैक, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी रिलीजियस ट्रेडिशन कहती है कि अगर आप सारी उम्र अपनी वालदा की खिदमत करते रहें तो आप उस एक रात का बदला नहीं उतार सकते जब माँ खुद बिस्तर की गीली साइड पे सोई थी, जो आपने गीला किया था बाय द वे, और आपको सूखी साइड पे सुलाया था। दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट, द ट्रेडिशन, द बिलीफ सिस्टम प्रोवाइड्स अस। तो पाकिस्तान नीड्स यू नाउ टू स्टेप इन एंड स्टेप अप. That is what the message is going to be today. It is in the most competent hands. I would not even venture elaborating on the first, first even signs or even preface it with my comments. So it is for Zafar Saab and his able team to elaborate on it. But let me, as your ambassador, explicitly seek your support. We will be officially in summer season in this part of the world. In मेरे ख्याल 20 जून से शुरू होता है, ऑफिशियली कब होता है? 21st. So it's almost there. Let it be the summer of economics for Pakistan. We have seen a whole year, one whole year of Pakistan's performance. Let's try and make it tenable and sustainable. So whatever you do, the Consulate General of New York is here, your embassy is here. You need our support in engaging with Pakistan economically, in investment, in trade, in commerce, in any other way. You need us, we are there to provide help. You don't need us, you don't even have to tell us. Do what you can do with Pakistan for Pakistan is the message, and let's tell the whole wide world who has seen the best of Pakistan that the best is yet to come, and there is a Pakistan that we would want to know. Thank you. Now I would like to invite Mr. Zafar Masood, President and CEO of Bank of Punjab, to share his insights on the opportunities available to overseas Pakistanis in banking and financial sector. Thank you very much for all of you showing up here. Give yourself a hand. मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे काउंसिलर साहब का है. इज वेरी वेरी पॉपुलर. आज सुबह भी एक इवेंट था, वहाँ आधा टाइम तो इन्हीं की तारीफें होती रही और तालियां बजती रही हैं. सो मुझे उसका बड़ी अच्छी तरह अदराक है, मगर आई थिंक इट्स बेटर टू हैव मोर इंटरैक्टिव डिस्कशन. मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश कहता हूँ क्योंकि मुझे शौक बहुत है, मुझे अपनी आवाज़ से बड़ी मोहब्बत है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ. तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम सिर्फ स्टेज सेट कर दूँ, एंड देन वी विल ओपन द डिस्कशन, ओपन द floor for discussion. Okay, so I have divided the presentation in 4 parts today, starting from the fact that
how does the macroeconomic situation looks like. Also the fact that how does, the recent budget that has been announced, what is in there for our expats. Then we talk about Roshan digital account, especially, RDA 2.0, and, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे शेयर करते हुए कि वो 2.0 के जो पहली प्रेजेंटेशन थी वो एम्बेसडर साहब ने होस्ट की थी 2 months बैक, और ये हम यहाँ उसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह आज. एंड देन मैंने थोड़ी सी आज प्रेजेंटेशन भी एक्सटेंड की और मैंने इस पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में, उसको भी थोड़ा सा सरफेस पे टच करने की कोशिश की. तो मेरे ख्याल से जिस तरह एम्बेसडर साहब ने आप सबसे शेयर किया है कि दिस इज नाउ द टाइम टू लुक एट पाकिस्तान फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. Investment in terms of foreign direct investment, not merely investing in the stock market or in government securities. And lastly, मेरा यहाँ आने का खर्चा जो है और इस इवेंट का खर्चा क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब ने दिया है, तो मैं ग्रो करूँगा अपनी ट्रम्पेट. थोड़ा सा बैंक ऑफ पंजाब के बारे में भी आपको बताएंगे हमने क्या किया. Starting from the macroeconomic achievements, it's established fact that there is a stability. But stability alone is not enough. Stability is only a means to an end. We need to now see how we can capitalize on this stability towards growth for the people and for the benefit of our economy. जिसके बारे में अभी एम्बेसडर साहब ने भी आपसे जिक्र किया था. The climate is just set. जिस तरह हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन एशिया. इस तरह इन्फ्लेशन जो है दैट हैज कम डाउन फ्रॉम अ पीक ऑफ 38% टू नाउ 6.2%. And then on the interest rate side there has been a decrease of 11% over the last couple of years. Economic growth now projected to be 4%, although it's not adequate, but nevertheless it's moving in the right direction. कम से कम एक पॉजिटिव ट्रेंड तो सेट हो जाएगा रियल ग्रोथ का. रेमिटेंसेस लास्ट ईयर $38 billion थी. इस साल we are expecting around $42 billion and slightly above $42 billion. सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के पर्सपेक्टिव से ये है कि जो हमारी करेंसी है that has been stable for the last couple of years and it is likely to stay stable as well. मैं यहाँ थोड़ा रुकूंगा इसलिए क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ना वो एक्सचेंज रेट हमेशा से रहा है. डीवैल्यूएशन रही. देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन कि जी बड़ी डीवैल्यूएशन की जरूरत है. पाकिस्तान की करेंसी जो है ओवर वैल्यूड है. आई डोंट नो आप लोग सब बहुत क्लोजली वॉच करते हैं. हमारे यहाँ बड़ी डिबेट चल रही होती है कि जी वो करेंसी जो है वो बड़ी 106 पे चली गई आरईआर की. एक तो ये आरईआर जो है ना वो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है वो कोई आसमानी सहीफा नहीं है. It is just one indication. So we do not have to religiously follow it. Nevertheless, what we need to make sure is the fact that we remain in the same range and do not go off that range much. 106% of that is perhaps not that bad. But nevertheless, we still need to talk about how we can make sure that currency जो है वो stable रहे और ऊपर नीचे ना जाए. इसके अंदर क्योंकि ये मार्केट की खबर है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहा जो कोई बड़ा सीक्रेट होगा. वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन $10 billion जो है वो मॉप अप किए हैं इन द लास्ट स्लाइटली ओवर 1 year. अगर आप $10 billion इसमें से निकाल देंगे तो करेंसी तो इंप्रूव हो जाएगी. तो देयरफॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द करेंसी इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट अपीयर्स टू बी. मेरा इसके ऊपर बड़ा एक थीसिस भी आया है और मेरा एक आर्टिकल आने वाला है वेरी सून. मैं चाहूंगा कि मैं यहीं रुक जाऊं इसके ऊपर, वो आप लोग देख लीजिएगा. आई हैव एडवोकेटेड दैट द करेंसी इज नॉट, हम बड़े ऑब्सेस्ड हैं एज अ कंट्री करेंसी के साथ कि जी उसको बढ़ा लो या उसको कम कर दो या उसको आगे कर दो. लेट इट बी ड्रिवन बाय द मार्केट एंड मार्केट डिक्टेट्स दैट वी आवर करेंसी हैज इट्स ओन strength and advantages. The challenge now is how to make sure that the stage which has been set both on the political front as well as on the stability side now need to be translated into a growth perspective, and not merely the growth but the even growth we need to talk about.
making sure that the poverty alleviation is the center of whatever we would like to do. On the federal budget side, what is in there for diaspora? वैसे तो कहने को बहुत कुछ था लेकिन मैंने सिर्फ उसको आप लोगों की हद तक रिफाइन किया। जो सेंट्रल पिलर है वो एक्सटर्नल सेक्टर की स्ट्रैटेजी के अराउंड रिवॉल्व करता है और एज यू नो नाउ remittances are 25% more than the exports. जो एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 30 के करीब है और ये 42-43 के करीब है, 30 से भी ज़्यादा बढ़ गया ऊपर, 30% से भी ऊपर बढ़ गया। ये इसलिए हमारे लिए रेमिटेंसेस और डायस्पोरा को एंगेज करना और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। एंड व्हाट हैज़ बीन डन इन दिस रीसेंट बजट, एक तो बहुत दरीना रिक्वायरमेंट थी कि जी हम वो इंटरनेशनल जो FED लगाया हुआ था हमने वो ख़त्म करें ताकि लोगों को के लिए ट्रैवल करना आसान हो जाए और रीजनेबल हो जाए आपके और आपकी टीम्स के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स पे रिलीफ था, दैट हैज बीन डन एज वेल, वो आधा कर दिया गया है। जो रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको रियल एस्टेट में 5% से कम करके 0.5 कर दिया गया, सिर्फ टोकन डाला गया ताकि डॉक्यूमेंटेशन रहे विदहोल्डिंग टैक्स। एंड देन ऑफ कोर्स जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है उसको ऑन फॉरेन एसेट्स पे अबॉलिश कर दिया गया। ऑल दीज मेजर्स हैव बीन टेकन टू मेक श्योर दैट द ओवरसीज पाकिस्तानीज will now look at Pakistan as a destination for investment. And that will surely accelerate the remittances coming through in the country. The next chapter is beyond, is actually to attract the global capital, global quality capital as I call it. And you know, the global diaspora has to play a major role here. The country who is our neighbor, their diaspora play a very major role. मैं सिर्फ एक चीज कहूँगा, अम्बेसडर साहब आपने जरूर हमारे डायस्पोरा को कहा है कि आप उनको कुछ स्टेप अप करना चाहिए और आगे आके वो एडवांटेज को लेना चाहिए। आई थिंक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, और ये तो ब्रिज है, वो शायद हम पे भी है। हमें भी आपके पास ज्यादा रीच आउट करना चाहिए और आपको फैसिलिटेट करना चाहिए और आपको सुनना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट आवर एंड टू मेक श्योर दैट आपकी जो इश्यूज हैं और ग्रीवेंसेस है वो एड्रेस हो सके। आज का ये सेशन जो है इसको आप उसी तनाजुर में देखिएगा। मेरी बहुत डिफरेंट हैट्स हैं, दो तो उन्होंने बता दी हैं। आई एम द CEO ऑफ द टॉप 10 बैंक्स इन पाकिस्तान। मैं भी आपको और बताऊंगा BOP के बारे में, मगर मैं पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन का भी चेयरमैन हूँ, मैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का भी चेयरमैन हूँ। एंड मेरे ख्याल से जो दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, वो मैं अभी आगे बात करूंगा उस पर, वो क्रिटिकल मिनरल्स की स्पेस में है, ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी, और वो डिजिटल की स्पेस में। हम दोनों पे अभी बात करेंगे, मैं उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। और जो एनवायरनमेंट है उसको आपके लिए ज्यादा कंड्यूसिव बनाना और एक्सेसिबल बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कोशिश करेंगे आज कि आपके लिए मैं अपने ताई जो कुछ भी कर सकूं, हम अपने ताई जो कुछ भी कर सके, मैं एम्बेसडर साहब, काउंसिलर साहब, हम आपके लिए वो और आसानियां क्रिएट करें और आपकी आवाज बन के लोगों को बताएं कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एंड हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड टू दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी which is there our way. And there are many growth opportunities right up our alley. I'll start out with Roshan Digital Account, which has now become the global gateway for remittances and growth. Early stages, it's this product still has to mature. There's huge upside exists. There is huge opportunity to improve the offering of Roshan Digital Account. Significant headroom for growth and participation is there. And what needs to be done? ये आप ही की बात सुनने के बाद हमने फैसला किया था कि किस तरह हम इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं, और फिर स्टेट बैंक हमारे साथ एंगेज हुआ, हम सबने मिलके जो है उसके ऊपर बहुत काम किया। मैं अभी उस पर आपसे बात करूंगा कि 2.0 में हमने क्या वो ऑफरिंग की। एंड वाइल जो RD है वो ब्रिज होगा between Bank of Punjab of making sure that it's the bank of choice on the ground. By the way, आप प्लीज ये मत
फील कीजिएगा कि मुझे अपनी नौकरी जस्टिफाई तो करनी है और कॉस्ट भी जस्टिफाई करनी है जो मैंने खर्च करके यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर आपका कोई और बैंक भी है, यू नीड एनी फैसिलिटेशन विद दैट बैंक, वाया बैंक ऑफ पंजाब विल बी एबल टू हेल्प यू आउट एंड मेक श्योर दैट आपको तकलीफ ना हो कि आपको शिफ्ट करना पड़े बैंक में। आप हमारे साथ ही काम करेंगे तो हम करेंगे। जो मेरा दूसरा हैट है एज द PBA चेयरमैन, मैं बहुत खुशी से आपको वहां भी फैसिलिटेट करूंगा। बट इस केस के अंदर RTA जो है वो ब्रिज है बिटवीन आपके रेमिटेंसेस में और बैंक ऑफ पंजाब में। रेमिटेंस ग्रोथ डायनामिक्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। दुनिया जहान में अभी भी खासतौर से साउथ एशिया में तकरीबन 20 to 50% of the remittances are out of the ambit, and उसको कैसे हम ला सकते हैं ये देखने की जरूरत है। जो कंट्रीब्यूशन है GDP में रेमिटेंसेस का वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 10% से ऊपर बढ़ चुका है रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन अलोन। विद द लोअरिंग oil prices after the landmark peace agreement that has been signed and reduced geopolitical situation, we think that remittances may face some headwinds. Therefore, it's important to make sure and come to you and to the others. मैं मंडे को ये लंदन में भी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरह हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं टू मेक श्योर कि जो अगर रेमिटेंसेस में कोई थोड़ी बहुत डिप भी आती है तो आप उसको हम आपके वाया यू विल बी एबल टू कॉम्पनसेट फॉर इट। रोशनी डिजिटल अकाउंट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इट वाज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक थ्रू। अगेन आप लोगों से बात करने के बाद वो किया गया था। 100% डिजिटल है, फुली रिपेट्रिएबल है, मल्टी करेंसी है, इन्वेस्टमेंट एक्सेस वहां मौजूद है और ऑब्वियसली वो स्टेट बैंक की रेगुलेशन में काम करता है। जो कन्वीनियंस है वो ये है कि ऑपरेशनल कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। इसमें आपको एट योर फिंगर टिप्स यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर द मनी इंस्टेंटेनियसली टू योर लव्ड वंस एट बैक होम। डिजिटल ऑनबोर्डिंग है वो मुझे आज किसी ने आज वहाँ एक और इवेंट पे ये शिकायत की कि जी वो बायोमेट्रिक करना पड़ता है। इसके अंदर जरूरत नहीं है आपको, ऑल्दो मेरी अभी बात हुई है यहाँ पर जोहरे साहब से कि हम किस तरह इसको और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम एक और भी करेंगे टू मेक श्योर कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें ताकि बायोमेट्रिक का मामला भी रिजॉल्व हो जाए। सीम टू बी एन इरिटेंट योर वे, सो लेट्स टॉक अबाउट इट हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। वो बड़ा सब्सटेंशियल अगर इशू नहीं है रिलेटेड टू compliance, then we should be able to get over this. And then product coverage बड़ी extensive है। एक ही प्लेटफॉर्म में हर किस्म की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। And then of course there is zero maintenance cost. जो ऑफरिंग है that goes beyond just the operational excellence. It talks about what else is available there, from financing opportunities to investment opportunities in stock market and in government securities. Having said that, the 2.0 is going to the next level altogether on how we can capitalize on investing beyond these stock market or government securities to the direct investment as well. ये जो प्रोडक्ट है मैं बहुत ज्यादा तफसीलात में इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को काफी हद तक इसका अंदाजा है। I'd rather spend more time on the 2.0 की offering than talk about this particular जो पुरानी offering थी उसके ऊपर। But nevertheless, just to refresh her memory, concessional basis पे और फास्ट डिलीवरी के तहत आपको गाड़ियां मिलती हैं और हाउसिंग फाइनेंस मिलता है। ये दोनों कंसेशनल अपॉर्चुनिटीज। मैं अभी आपसे एक और भी चीज शेयर करूंगा सब्सिक्वेंटली जो पर्टिकुलरली बीओपी करना चाह रहा है इन दिस स्पेस। एंड देन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट सिंपल 3-step फॉर्मूला है एंड यू गेट द एक्सेस टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज व्हिच बाय द वे वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज लास्ट ईयर। Bank of Punjab alone, the share went up by 334%. We made billionaires last year.
And then of course there is a philanthropic aspect to it as well. वो जहाँ भी charities digitally हमने उसमें डाली नहीं है, you can select them and send the money abroad. और जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल दिल पे हाथ रख के आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये किस तरह आप लोग जो हैं वो सोशल सेक्टर के अंदर चैरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने शुक्रिया तो आपका अदा किया, बट आई डोंट थिंक आई हैव वर्ड्स टू थैंक यू फॉर इट, बट थैंक यू वेरी मच। दो और प्रोडक्ट्स हैं जो रिलेटिवली बाद में आई हैं। एक जो है वो है आपकी फिक्स इनकम सिक्योरिटी 3 पहले से, बट जो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आई है वो आई है पेंशन फंड के अंदर कि आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और देयर इज a flexibility available there. I will not delve too much into this at this point in time. We'll read the presentation with the consulate here. वो आप सबसे शेयर कर लेंगे, and उसके अंदर मैंने contact details भी दी हुई हैं. For any specific questions that you have, please do not shy away. Just raise the questions. We'll be happy to respond. And then now, the next frontier is how to unlock the foreign direct investment. Moving, although what we have done in 2.0 now is that we have opened it up for the foreign national corporates and institutions, and we have also tried to first start from attracting them money into the low risk products, which will then translate into an FDI subsequently. जिसको हम कहते हैं ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो कहते हैं, मैं थोड़ा शेर व शायरी पे जरा मेरा थोड़ा सा रुझान है, तो वो कहते हैं कि चले हैं तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सफर पे चलेंगे तो कट ही जाएगा सफर। इवेंचुअल सफर जो है वो FDI। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है इस वक्त, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मैं उस पर ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, बट सिंस पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड, वी हैव बीन एबल टू ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड बिग रिटर्न्स फॉर यू विद द स्टेबल करेंसी। इसीलिए मैंने थोड़ा करेंसी के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, और इसीलिए अब मैं इस पे आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि the returns are absolutely mind-boggling. Then we will talk about how the transition takes place from a historical consumption-driven model to now, wealth creation and investment-driven model. जो 2.0 हमने ऑफर किया, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, उसके अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें हमने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको मनी अलाउ किया है। वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो चारों एरियाज बता देता हूँ जहां हमने सब्सटैंशियल चेंज किया है। फॉरेन कंपनीज अलाउ कर दी है इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इंडिविजुअल्स को अलाउ किया है, इंस्टीट्यूशन अलाउ किए हैं, फैमिली ऑफिस को अलाउ किया है। पीपल हु आर ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड एसेट मैनेजमेंट, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रेजेंट इट टू योर कस्टमर्स with a stable currency. 11% return is unmatched in the world. So therefore, it has to be looked at in that context. And then there is a recent product offering जो मैं आपके तवज्जो से चाहूंगा कि जो आपके जानने वाले और प्यारे हैं बाहर और जो आना चाहते हैं, खास तौर से पंजाब से, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जरूर ये प्रवास कार्ड को देखें। प्रवास कार्ड का आइडिया ये है कि जो आपकी अगर आपको नौकरी बाहर मिल गई है तो जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, टिकट के लिए, और इनिशियल 3 महीने तक आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। वो 10 लाख रुपए तक हम आपको देंगे लोन, जो आप जाने के बाद पे करेंगे ओवर अ पीरियड टाइम फ्रॉम योर सैलरी इन 12 months. It's a big support for our younger people to capitalize on and come. और उनको जो उसको हमने फिर जो सोनी धरती का प्रोग्राम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उससे डबटेल कर दिए, तो उनको फिर उसमें एडवांटेजेस मिलेंगे पॉइंट्स के, which they can utilize for various other concessions. बट जो मेन कंसेशन है वो आपको पासपोर्ट की
और नादरा की जो सर्विसेज हैं उस वो यू कैन पे फॉर इट, PIA की जो परचेजेज हैं यू कैन पे फॉर दैट, आपको OPF स्कूल्स जो हैं उस पे एक्सेस मिल जाती है, एंड देन ऑफ कोर्स स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी है दैट कम्स हैंडी एज वेल वंस यू आर पार्ट ऑफ द सोनी गद्दी प्रोग्राम वाया प्रवास कार्ड। अच्छा, अब ये जो है इस पे मैं जरा चाहूंगा कि आप सबकी तरफ हमें थोड़ी सी इस पे फीडबैक मिल जाए। दिस इज एन इवॉल्विंग प्रोडक्ट दैट बैंक ऑफ पंजाब इज वर्किंग ऑन। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और आप प्लीज इस पे जरूर फीडबैक दीजिएगा कैंडिडली, ताकि अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम अभी इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर लें। ये प्रोडक्ट ये है कि हम ये करना चाहते हैं कि हम आप एक कोलैबोरेट करना चाहते हैं विद अ बैंक ऑन द ग्राउंड, और वो बैंक जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के साथ कोलैबोरेट करेगा। वो आपके क्रेडिट के ऊपर आपको जो क्रेडिट कार्ड दे रहा है हम उसका शैडो क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे इन पाकिस्तान टू द बेनिफिशियरी। तो जो आपकी लिमिट है उसके अंदर रहते हुए बेनिफिशियरी कैन यूज द कार्ड लोकली इन पाकिस्तान एज वेल। तो आपके लिए रेमिटेंस की भी आसानी हो जाती है। द ओनली वे यू नीड टू सेटल दैट आउटस्टैंडिंग इज थ्रू द रेमिटेंस। तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाती है कि जो आपका क्रेडिट है वी विल बी एबल टू ऑफर दैट क्रेडिट जो आपके बैंक ने अप्रूव किया हुआ है टू योर लव्ड वंस इन पाकिस्तान एज ए सप्लीमेंट्री कार्ड परहैप्स। एक प्रोडक्ट हमने ये बनाया है, और एक इसी प्रोडक्ट का ऑफशूट होगा, वो ये होगा कि हमारी एक्सेस है टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वेरियस प्रोग्राम्स जो ज्यादातर इंटरेस्ट फ्री हैं। फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए तक जो लोन है हाउसिंग के लिए, दैट इज इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 10 इयर्स। जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो 5% पे आपको मिलता है पहले 10 साल, और फिर वो मार्केट रेट पे है, वो 10 मिलियन रुपए तक है, 1 करोड़ रुपए तक है हाउसिंग पे। देन यू हैव एग्रीकल्चर का क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर किसान कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब आपको सपोर्ट वहां मिल सकती है, अगेन इंटरेस्ट फ्री। एंड देन आसान कारोबार कार्ड जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक पैसे मिल सकते हैं आपके लोगों को ऑन द ग्राउंड, वो भी अवेलेबल है। और हम अभी एक और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं सनतकारी प्रोग्राम के नाम से, जिसमें हम 5 अरब रुपए तक फाइनेंसिंग देंगे, और उसमें एक जो बीच में है वो 1 बिलियन रुपए का फीचर है और एक 100 मिलियन का है फॉर SMEs। आप अगर चाहेंगे तो आपके क्रेडिट की बेसिस पे वी कैन देन एक्सटेंड दैट मनी टू योर लव्ड वन एंड द प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। सो दिस इज आवर फैसिलिटेशन for you to do the direct investment FDI in Pakistan with your partners in Pakistan, with your family in Pakistan। आप प्लीज इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, एंड देन अगर उसमें कोई रिफाइनमेंट की जरूरत है तो we'll happy to do it। Now let's talk about the high potential investments in Pakistan। पहले तो मैं स्टेज सेट कर दूं कि किस तरह ट्रेड लिबरलाइजेशन हुई है। एक आपसे जरा कॉन्फिडेंस में बात शेयर कर लेता हूँ। ये सारे पॉइंटर्स जो है ना, ये मुझे IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने दिए हैं। जो मैंने उसको बताया मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने कहा मुझे कोई पॉइंटर्स हैं, तो उसने ये सारे पॉइंटर्स दिए। मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ, बिकॉज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर गेटिंग कंफर्टेबल विद पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड लिबरलाइजेशन एंड ओपनिंग अप द मार्केट्स। So the tariff reduction, तकरीबन 19.3% हमारा tariff is one of the highest in the region, has to come down to 14.5% in the next 3 years। FX की जो trade market liberalization हुई है उसमें अब बैंकों को अथॉरिटी दे दी गई है कि आप डिविडेंड को रिमिट कर सकते हैं आउटसाइड पाकिस्तान। तो वो भी अब वो ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है। Banks have to evaluate and send the money out। Then जो मार्केट जो प्रोडक्ट मार्केट की लिबरलाइजेशन है उसका आपको अंदाजा ही है, उसमें कुछ बैरियर्स कम किए गए हैं, कुछ इंप्रूव की गई है इन्वेस्टमेंट में भी, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे भी इसमें बात करूंगा। और मार्केट लिबरलाइजेशन की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन की हो रही है उसमें भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यू मस्ट लुक एट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रेगुलेशन अभी चेंज हुई है, जो कंपनीज एक्ट चेंज हुआ है, ऑल ऑफ देम हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स जो हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज है। मैं उस पर वन बाय वन अभी आपसे बात करूंगा। गुड न्यूज, हम ज्यादा गुड न्यूज सुनने के आदी नहीं है। कुछ तो गुड न्यूज आपको पॉलिटिकल फ्रंट पे
एम्बेसडर साहब दे चुके हैं। मैं ज़रा इकोनॉमिक फ्रंट पे भी आपको गुड न्यूज़ दे दूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है वो, ऑल्दो मैं इसको भी कंसीड करने को तैयार हूँ कि गालिबन ये इसको थोड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे लंबा होना चाहिए, बट चलिए कम अज कम हम उस डायरेक्शन में तो चले ना। थोड़ा सा सेलिब्रेशन का भी हमें होना चाहिए कैपेसिटी हमारे अंदर। हर वक्त अपने आप को इतना क्रिटिकल ना बनाए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसमें तो वो हर चीज पे अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे वो प्रिंस हैं और हम बिल्कुल, दैट्स नॉट द रियलिटी, इट्स प्रूवन इन द लास्ट 1 ईयर। हम प्रिंस हैं वो नहीं है, मगर हम इतने क्रिटिकल हैं अपने बारे में कि हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन है। ऐसा नहीं है, वी आर डूइंग फेयरली वेल, काइनेटिकली वी हैव प्रूवन आवरसेल्फ, इकोनॉमिकली इज द टाइम, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा, फॉर अस टू प्रूव आवरसेल्व्स दैट वी आर वर्थवाइल नेशन एंड वी विल डू इट। आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, जब ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ शुरू हुआ था, कितने लोगों को यकीन था कि इसका आउटकम वो होगा जो हुआ? 2 लोगों को ख्याल था, 3-4 को ख्याल था, 100 आदमियों से 4 को ख्याल था, 4%। द रियलिटी है कि ये भी टेंटेटिव थे, इनको भी नहीं पता था कि ये एग्जैक्टली इस तरह ही होगा जिस तरह वो हुआ। आज तक ये प्रूव नहीं हो सका कि 7 है या 11 है, क्योंकि वो तो कहते 11 है। लिहाजा हमें इसी बात की कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि अगर हम वहां पर ही काम कर सकते हैं तो हम यहां पर भी ये काम कर सकते हैं, और हमने किया है। देयर इज इनफ्लो की रेजिलियंस है ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज रिकवरी इमीडिएटली अवेलेबल, एंड ऑफ कोर्स ईयर टू ईयर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है। लेट्स सेलिब्रेट इट एंड लेट्स बिल्ड ऑन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। पहली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो मैं पहले कवर करूंगा, और जो दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको आखिर में कवर करूंगा। वो है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डेटा सेंटर पे। पाकिस्तान में अभी 3 डेटा सेंटर जो हैं वो लगने जा रहे हैं, बैंक ऑफ पंजाब तीनों का हिस्सा है, और वो प्राइमरीली इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है बिजली की, और वो भी उसमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोलर और विंड मौजूद है। तो लिहाजा इट इज एन ऑब्वियस चॉइस टू गो फॉर the data centers in Pakistan, starting from tier 3 and tier 4 data centers to cloud infrastructure, to AI computing opportunities, and of course the digital infrastructure in general and connectivity is a big opportunity in Pakistan. This is the time to look at it and invest. And of course you can do it with the local partners as well. Happy to connect you, whoever is interested, with the local partners too. जिस तरह वो एम्बेसडर साहब कह रहे थे, $4.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, मगर फ्रेंकली स्पीकिंग इससे तकरीबन कोई 1.5% ऐसा अमाउंट है जो नहीं पाकिस्तान आ पा रहा। तो अगर हम अपना थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ले आए, रिफाइनमेंट ले आए, लोगों को कंफर्ट दे दें कि उनको एफबीआर वाले तंग नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, एफबीआर के तंग करने का भी मामला क्या है? बड़ा सिंपल, मैं बड़ा ही आर्ग्यू करते रहता हूँ सबके साथ। बात ये कि हमने उनका जो है ना, हमने उनको इंकरेज किया हुआ है, या तो कोई हमारा स्केलेटन इन द क्लोजेट है जिसको हम छुपा रहे हैं, या कन्वीनियंस के लिए हम उनको पैसे दे देते हैं। द मोमेंट वी स्टैंड अप एंड से वी विल नॉट अकोमोडेट यू, ट्रस्ट मी, द थिंग्स विल चेंज। तो वाइल वी नीड टू मेक श्योर कि फेसलेस हम एफबीआर की तरफ जरूर जाएं, मगर थोड़ी सी हमारी तरफ से भी पुश बैक की जरूरत है। सबसे बड़ा रिसीविंग एंड पे बैंकिंग इंडस्ट्री है। मैं 3 जगह से हिट हो रहा हूँ एफबीआर से। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री का 1 ट्रिलियन रुपी प्लस इन डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा ऑयल एंड गैस 600 बिलियन रुपीस प्लस। तीसरा, एक्चुअली वो तीसरे में वो चला गया। दूसरा, एज एन इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल्स आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 800 बिलियन रुपीस। I mean, it's ridiculous. We need to stand up and say that no, it's not acceptable, but we all collectively have to move in that direction and ask for it. Until we ask things, we don't get it. Solar, enormous opportunity. Solar में last year में हमने दुनिया में सबसे ज्यादा पैनल्स इंपोर्ट किए। सो पैनल असेंबली
सो पैनल असेंबली, और इसमें जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एम्बेसडर साहब वो 50,000 मेगावाट है, जो हमारी टोटल जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी उससे ज्यादा सोलर लगा हुआ है। ऑल्दो सोलर इज नॉट अ बेस लोड, तो वो कम होता है, 16-17% आता है, बट nevertheless a big opportunity from an investment standpoint to look at how you can service and set up the panel assembly units in Pakistan, and this is where solar is something, वो आपने शायद इकोनॉमिस्ट में देखी भी होगी, हमारे बारे में स्टोरी भी आई थी। It is a big opportunity and this time to capitalize on it. My favorite, agriculture and food security. Agriculture और food security के अंदर हमारी बड़ी ऑब्वियस किस्म की कुछ वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं वो बहुत नीचे है। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी लेवल के ऊपर काम करें, लार्ज टैक्स ऑफ लैंड लेके कॉर्पोरेट फार्मिंग करने की कोशिश करें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है, मच बेटर देन our neighbors and competition. There is a huge potential domestically, but more so on the export side. अच्छा, एक्सपोर्ट पे बड़े यूनिक इसमें फिनोमेना है। एग्रीकल्चर के अंदर जो साइकिल है कन्वर्जन वो 6-6 महीने का है, तो 6 महीने के बाद you will have the cash flows coming in for the exports that you are doing or whatever you are producing. So therefore, you do not have to wait for 5, 6, 7 years. The cash flow will immediately start coming in, and the cash cycle is so small that you will be. It will be much efficient if your productivity standards are much better. So 46.3% of the economy, directly indirectly, wo by the way is connected to agriculture, and there is a big opportunity there to not only go in the livestock, which is the predominantly जो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसका हिस्सा है। हम we are the 5th largest producer of milk in Pakistan, हालांकि अभी भी प्रोडक्टिविटी सेंटर्स नीचे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है to look at investment there, बट उसके साथ साथ क्रॉप्स में, फ्रूट्स में और फ्रूट स्टोरेज में खास तौर से, एंड ऑफ कोर्स सी फूड के अंदर ब्लू इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। हमारी बैंक ऑफ पंजाब की पूरी रिपोर्ट भी है ऑन ब्लू इकोनॉमी, बाय द वे, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज देयर, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यू कैन एक्सेस दैट टू। सोलर रेवोल्यूशन मैंने ऑलरेडी मैं उल्टा चला गया हूँ एक्चुअली। रियल एस्टेट 10 मिलियन हाउसेस का शॉर्टफॉल है, कमर्शियल स्पेस का शॉर्टफॉल है, होटल्स का शॉर्टफॉल है, टूरिज्म सेंटर्स का शॉर्टफॉल है, यू नेम इट एंड देयर इज अ शॉर्टफॉल इन रियल एस्टेट एवरीवेयर, और वो ग्रो कर रहा है तकरीबन 5 लाख घरों से एवरी ईयर एज वेल। कमर्शियल बिल्डिंग्स का जैसे मैंने कहा उसका शॉर्टफॉल है, and all those, and then there is a big opportunity to have green building construction and building material to be provided. आपको globally, because हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो you can have the access to those funds which are available out there on the green side to take the advantage of it, some concessional financing, and then talk about how you can utilize that funding for investment in Pakistan in the real estate sector. And then, of course, there is a big opportunity on the periphery industries. वो जरा थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली जो ये आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका सीमेंट है, जो स्टील है, जो और पेरिफेरी जो ब्लॉक्स बनाने वाला मामला है, ये सब जो है ये भी साथ साथ उसके चलता है। देयर इज अ सेइंग कि कोई तकरीबन 28 से 30 इंडस्ट्रीज जो है वो इससे कनेक्टेड है, तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दोज areas also, but most importantly government का बहुत ज़्यादा focus है to promote this, so you will always have a preference whoever will invest in here. Pharmaceuticals, big opportunity locally, big opportunity to export to Central Asian republics and to Africa. सारी मार्केट को कैपिटलाइज किया हुआ है हमारे नेबर ने। This is the time for us to see where is the opportunity for us. Low entry barriers हैं, big demand out there,
Healthcare standards in Pakistan are very low, so therefore, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी काम चल जाएगा. आप उसकी हॉस्पिटल की इन्वेस्टमेंट भी दे सकते हैं. एजुकेशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हॉस्पिटल प्लस मेडिकल कॉलेज इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एज वेल. And the quality healthcare is something there's always demand in Pakistan for it. Ladies and gentlemen, in terms of sector, let me just conclude with the last one. ये आखिरी जो है ना, ये रियल गेम चेंजर है, और ये है क्रिटिकल मिनरल्स में और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल अक्रॉस. 92 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनमें से मेनली 56 अभी एक्सप्लोर हुए. हमने यूएसएसएम के फ्रेमवर्क के अंदर फिजिबिलिटी बनवाना शुरू कर दी है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. $500 मिलियन की फिजिबिलिटी वो बन रही है, जिससे बैंकेबिलिटी सामने आ जाएगी. Let's position yourself to take the advantage of that situation. It's a Missouri-based company which is working on it. Then you have a big opportunity on the mining side. We are talking about 15 million tons of copper, 26 ounces of gold. This is a huge number. It's probably the largest unexplored copper mining proposition in the world. Then offshore, अभी शुरू हुई है offshore drilling. 18 साल के बाद अभी concessions दिए गए हैं. उसमें से 23 concession जो है वो OGDC के पास भी आए हैं. मगर जो offshore के 3 concession हैं, we are talking about 3 trillion cubic feet daily of gas to be produced from there. We are talking about shale, जिसके अंदर पहला कुआं भी BOP उस पे OGDC उस पे काम कर रहा है. वो वर्टिकली हम जा रहे हैं. We are expecting 15 million trillion cubic feet of gas to be made available there too. And these are humongous big numbers, all across. इससे जो related चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अपनी जगह पे रहना है. तो अगर ये मोमेंटम बढ़ेगा तो उससे जो रिलेटेड सारी की सारी अपॉर्चुनिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ेगी, मिलेगी टू इन्वेस्ट इन दैट. एंड दिस इज वेयर there is a huge interest from everybody to look at it very positively globally, and you have the opportunity to do the collaboration with the local large companies and bring them to Pakistan. We will facilitate you to invest in Pakistan, both as Bank of Punjab and as OGDC. Let me just put my hand on that. प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम. अगर आप प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूं, तो एक तो जो सबसे बड़ी है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं. हमने देखा कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई, बहुत सक्सेसफुली कंपनी चल रही है, और इनमें कुछ बहुत सक्सेसफुल कंपनीज हैं. एंड इट्स अ बिग, फॉर एग्जांपल फेस्को जो है, उसकी कलेक्शन जो है वो 100% से ऊपर है, क्योंकि जो पिछले वाले भी डिफॉल्ट हुए हैं वो भी रिकवर करवा लेते हैं. तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी. ISO की बड़ी अच्छी वो है, although there are certain bad players in there as well, but in the combination perhaps it makes a lot of sense. But it's a huge opportunity. Please tie up with somebody and come and pitch for the power distribution companies. Then there are 3 banks which are up for grabs. There is SME Bank, there is HBFC, and then there is ZTBL. Now, let me just tell you one thing. Although it sounds as if कि ये खाली SME का काम कर सकता है, it sounds कि HBFC जो है वो सिर्फ हाउसिंग का काम कर सकता है, it sounds as if कि ज़राअत तरक्कियाती बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर काम कर सकता है. इन सब के पास यूनिवर्सल लाइसेंस मौजूद है. They can do the commercial banking there. It's a big opportunity for you to look at it and see how you can take the advantage of their universal license for doing commercial banking in Pakistan. Banking in Pakistan, although it's 55% taxed, but it is still the most profitable business possible. Please tie up with somebody, big consortiums, come through in Pakistan. Digital landscape is another opportunity where if you get into the banking right now, you can build on it on the digital side. And like Bank of Punjab,
you can become the largest digital lender in Pakistan. आखिरी आपकी पड़ोस में is Rosegold. आ गया है ब्लॉक पे, अब आप सबको से गुजारिश है कि इसको पकड़ लें आप लोग. मैं तो कहता हूँ कंसोर्शियम आप लोग खुद ही बना लें मिलके, बट इसको प्लीज, ये बड़ा एसेट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लेट्स लुक एट इट हाउ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस. माशाल्लाह से आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 3 decades we have been able to break through वो जिंक्स टूट गया, and we have been able to privatize, PIA. We have been able to privatize heavy electrical complex. वो सर्विस इंटरनेशनल होटल था, वो फंसा हुआ था, that is gone as well. And by the way, one of the largest financial groups in UAE ने फर्स्ट वुमेन बैंक खरीदा है. सेम प्रिंसिपल के तहत जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस उनके पास मौजूद है, and they know how to build on this. By the way, they are looking at the digital proposition in the First Women's Bank. आखिर में बैंक ऑफ पंजाब आपकी खिदमत में हाजिर है. RDA पे भी सपोर्ट करने को तैयार है और FDI पे भी सपोर्ट करने को तैयार है. बैंक ऑफ पंजाब, आप लोगों को बड़ी खुशी होगी सुन के, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बैंक ऑफ पंजाब इज द लार्जेस्ट SME बैंक इन पाकिस्तान. द लार्जेस्ट जब मैं कहता हूँ तो जो दूसरा बैंक है वो आधा है, वो ब्रांचेस में हमसे डबल है, बैलेंस शीट में 3 times बड़ा है. मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद अंदाजा लगा दीजिएगा. SME के पोर्टफोलियो में हमसे आधा है. लो कॉस्ट हाउसिंग, पूरी इंडस्ट्री एक तरफ है, बैंक ऑफ पंजाब 2 times बिगर देन द एंटायर इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बोरोवर्स. सो दिस इज वेयर द बैंक ऑफ पंजाब स्टैंड. लार्जेस्ट बैंक इन डिजिटल लैंडिंग, पूरी इंडस्ट्री एक तरफ है, 2 times ऑफ दैट इज बैंक ऑफ पंजाब अलोन. लार्जेस्ट बैंक इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, जो दूसरा बैंक है वो 70% है यहाँ का, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है. बैंक ऑफ पंजाब से 3-4 गुना बड़ी बैलेंस शीट है. एग्रीकल्चर में नहीं है, SME में नहीं है, लो कॉस्ट हाउसिंग में नहीं है. दैट्स आवर फोर्टे. वी आर द नंबर 1 बैंक इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस. विमेन इंक्लूजन, समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट. नंबर 1 बैंक. ये बैठी हुई यहाँ सामने है ना, अभी इनका रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है. मेरा नहीं ख्याल है कोई और बैंक इस तरह की सर्विस दे सकता है इस तरह का. हमने वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया. लास्ट ईयर एम्बेसडर साहब 30,000 लोन, ये आपने कल सुना था वहां, 30,000 लोन टोटल विमेन को दिए गए थे. 24,000 लोन जो थे वो बैंक ऑफ पंजाब ने दिए. द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री को शेयर है. और अगर हम सिर्फ अपनी ग्लोबल जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसी को मीट कर लें, 33% जो हम 23% पे आज हैं, तो हमारी इकोनॉमी 25% to 30% ग्रो कर जाती है. ये इंपॉर्टेंस है विमेन पार्टिसिपेशन की. इन्होंने मुझे बहुत उसके ऊपर पिछले 4 दिन में बड़े जज्बाती मैसेजेस भेजे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है विमेन पार्टिसिपेशन. आई एम ऑलरेडी कन्विंस्ड विद इट. एंड बैंक ऑफ पंजाब ऑफ कोर्स इज द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर इन पाकिस्तान, 33% मार्केट कैप साइज. मैं अभी वाइस चेयरमैन से मिला, मास्टर कार्ड के ही स्टैटिक. He wants to come to Pakistan. He is a big guy. John Huntsman, जो presidential candidate है, governor. He wants to come to Pakistan and talk about it. We want like to be the reason for him to come. And then look at the other opportunities for Pakistan. In terms of economic impact, 2,80,000 jobs create की गई हैं. 98% रिकवरी है, 57% रूरल पार्टिसिपेशन है और 7,000 प्लस जो है वो विमेन है. बट खाली इम्पैक्ट पे काम नहीं चलता, थोड़ा सा बॉटम लाइन भी इंप्रूव करनी पड़ती है. वो बॉटम लाइन इस तरह इंप्रूव हुई है कि हमारी शेयर प्राइस जो है, जिसका मैं आपसे कहा 334% ग्रो की है इन द लास्ट 1 year. And we have actually been able to create billionaires in Pakistan. Bank of Punjab also takes the pride in the fact that we are not only, one of the most profitable banks, but we are also contributing towards the country and to our people. ये जो मैं बार-बार आपके पास आ रहा हूँ, this is one big gap that is lacking in our offering, and I really want to capitalize on it. अगर हम इस पे ब्रेक थ्रू कर गए, ट्रस्ट मी,
इस मुल्क का फेट चेंज हो जाएगा और मुझे यकीन है कि विद पेट्रियट्स हियर we will be able to make a headway. क्यों बैंक ऑफ पंजाब को चूज करना है? बिकॉज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है. देयर आर कोजेंट रीजंस फॉर इट. डिजिटल लीडरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है, ग्लोबल रेमिटेंस नेटवर्क है, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट है, जिसकी वजह से हमारी एक्सेसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है टू दी कंसेशनल फाइनेंसिंग, जो आपको बाकी बैंकों में नहीं मिलेगी. मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको बताता हूँ, ये यहाँ एक साहब बैठे हुए मेरे मार्केटिंग हेड हैं, असद दया साहब, इनको मैं जिन बाबा कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अक्सर मेरे साथ ये काम किया है कि अम्बेसडर साहब, मैंने तो ये लाहौर में थे फ्राइडे को, तो मैं इनको रात को 12 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा बस फलानी चीज़ रह गई. सर कहाँ हैं आप? मैंने कहा घर से हूँ. मैं बाहर ही हूँ, मैं आ रहा हूँ. आज यार ठीक है, होगा यहाँ कहीं. अगले दिन सुबह मैं कराची पहुँचा, मैं कहा यार मैं वो भूल गया, मैंने असद को फ़ोन किया, मैंने कहा यार असद को मैं फलानी चीज़ भूल गया हूँ, वहाँ पर कोई इवेंट है. कहने सर किधर है आप? मैंने कहा घर पे. गया बाहर खड़ा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ. मैं कहा तुम जिन बाबा हो क्या हो? दिस इज वन गाय who is just an example. हमारे पास सारे जिम्बाब्वे मौजूद हैं, ये सारे जिम्बाब्वे हैं बैंक ऑफ पंजाब के. इसीलिए आपको बैंक ऑफ पंजाब कहाँ नजर आ रहा है, वो इसीलिए कि सारे जिम्बाब्वे वहाँ पर हैं. I have the best team in Pakistan and some people who dealt with them will be able to vouch for it. Going an extra mile and making sure that we will be able to deliver for our customers. The bank started with a good team, if you recall. अच्छा, अब ये यहाँ बड़ा मसला है. मसला ये है कि अम्बेसडर साहब ने अपना करियर जो था वो शुरू किया था बैंक ऑफ पंजाब से, तो वो सारा क्रेडिट ये ले गए. वो कह रहे हैं कि शुरू की टीम थी ना वो सबसे अच्छी थी, बस उसके ऊपर सिर्फ बिल्ड हुआ. एंड आई बिलीव दैट एंड आई मस्ट से कि यस, अगर अम्बेसडर साहब जैसे लोग बैंक ऑफ पंजाब में थे तो यकीनन आज यहाँ खड़ा हुआ है उसी की वजह से खड़ा हुआ है. तो अब भी कांड on the FDI side we have the best investment banking team by far. Market positioning, competitive strength, capital market, project financing देख लीजिए, advisory service देख लीजिए, syndication देख लीजिए, सब जगह बैंक ऑफ पंजाब is the number one bank. and जो हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है वो भी मैं यहाँ पर आपको बीच वाले डब्बे में नजर आ जाएंगी. AFD जो फ्रेंच DFI है, उसने क्लाइमेट में हमें फैसिलिटी दी है $54 million की. We are the only banks who have this. By the way, अम्बेसडर साहब बड़ी खुशी हुई सुन के, काउंसिलर साहब, IFC is doing an exception, क्योंकि वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से डील कर रहे हैं, to include Bank of Punjab in their portfolio because they want to deal with us given our credentials in that space. और इस तरह के बाकी जितने लोग हैं, चाहे वो FMO हो या DEG हो या OPIC हो या DFC हो, we are all dealing with all of them. Obviously ये तो थोड़ी लफाजी होती है. हमें पिछले साल को 30 अवार्ड मिले और इन्वेस्टमेंट बैंक के तकरीबन हर सेक्टर से कोई अवार्ड मिला. हम तकरीबन हर अच्छी ट्रांजैक्शन को क्लोज करने में बड़ी कामयाब हुए हैं लास्ट ईयर में. फ्रॉम हेल्थ केयर टू ये दूसरा वाला है BYD पाकिस्तान में आ रहा है, ईवी वहाँ पर असेंबल करेगा. ये वो है, ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है तीसरी वाली जो टेक्सटाइल की है. ये हमने वियतनाम से खींची है इन्वेस्टमेंट, वो वहाँ लगाना चाहते थे. हमने उनको कुछ ऑफर्स किए विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. वो जो आपसे मैं गुजारिश कर रहा था अबाउट द कंसेशनल, वो डिक्लेयर कर दिया हमने एज अ कंसेशनल. उनकी जो जोन था उस पर वो यहाँ आ गए. दे बीन एबल टू इन्वेस्ट in Pakistan. Sky 47 is the data center, the first data center which is set up in Pakistan. जिस तरह मैंने आपसे कहा, हर बड़ी ट्रांजैक्शन में पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की जो ट्रांजैक्शन है वो 75 बिलियन रुपीस की जैज थी, वो बैंक ऑफ पंजाब ने लीड की थी. और जो अभी सर्कुलर डेट का पूरा मामला हुआ है 1.2 ट्रिलियन रुपीस, वो PBA ने हैंडल किया था. बट बिकॉज वर्च्यू ऑफ मी बीइंग द चेयरमैन, बैंक ऑफ पंजाब की टीम उसमें बहुत ज़्यादा आगे आ गई थी. हबीब बैंक जिसने वो 1.2 ट्रिलियन की सिंडिकेशन की. PIA की सिंडिकेशन, वी वर द लार्जेस्ट लेंडर, तो वी लेड दैट एज वेल. उसमें मैं PBA का चेयरमैन नहीं था, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो PBA के चेयरमैन थे. और वहाँ हमने 290 बिलियन रुपीस की रिस्ट्रक्चरिंग की, जिससे रास्ता खुला
for privatization in Pakistan, वरना पाकिस्तान में privatization ही नहीं हो रही थी. Again, ladies and gentlemen, I can tell you with a hand on my heart, you will not find a better team than Bank of Punjab in terms of responsiveness in delivery and the connectivity. Thank you very much for all your attention. आपकी ब्रीफिंग सुन के बड़ी खुशी हुई. आपने काफ़ी डिटेल बातें की हैं, खासतौर पे जो उन्होंने इन्वेस्टर साहब ने भी जो तकरीर की, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने टूरिंग पॉइंट और पाकिस्तान के और दुनिया के हालात के मुताबिक बात की. बात यह है कि आपने अपने बैंक की नाम खुली है, सब प्रोजेक्ट बताए. मैं भी आपका अकाउंट होल्डर हूँ, DHL लाहौर. काफ़ी जगह पे खामियां हैं, ये चीज़ें वो नहीं बताते जो आपने बताई हैं. मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि वो ये क्यों नहीं करते. दूसरी बात ये है कि आप OGDC के भी चेयरमैन हैं. मेरी LPG कंपनी है, पिछले 15-16 साल से मैंने अप्लाई नहीं किया वहाँ के कोटे के लिए, लेकिन किसी ने ऑफर भी नहीं की वहाँ हमें. और मैं देखता हूँ जो कंपनियाँ बाद में आई हैं उनको वो कोटे लाट हो गए हैं. मेरे पास भी सिफारिश है, मैं भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान से कह सकता हूँ, मैं भी और भी लोगों से कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ मेरिट पे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे मेरिट नजर नहीं आ रहा. तो ये चीज़ें मैंने आपके नोटिस में लानी थी, तो काइंडली आप देखेंगे. Assalamualaikum. My name is Fozia Janjua. I'm an elected official in New Jersey. My question to you is, I know most Pakistanis, overseas Pakistanis are interested in investments and development in Pakistan. But transparency is very important. So what concrete steps are being taken so that investors feel confident and informed? For example, is there a point person in the USA that can help investors, or somebody that they can contact and call and get information? Is there a helpline that you can establish? This is a question for the government. China banned cryptocurrency last time I checked. And I looked at cryptocurrency, and when you look at the Federal Bureau investigation, when you look at drug trafficking, human trafficking, cryptocurrency is used as a means of exchanging currency. So my question is, will Pakistan be using cryptocurrency, investing in cryptocurrency, or will Pakistan follow China's lead and ban cryptocurrency? Because I think cryptocurrency is a form of currency that can be hacked and be completely made irrelevant. And I don't support the US government making cryptocurrency. So what are your thoughts on cryptocurrency? Okay. In Pakistan, and the process was really complicated. And they asked some documents which are totally irrelevant. For example, I gave them my New York license as a proof of residence, and then my manual passport for all of the information, and I also had a CNIC. But they asked me, I wanted myself, they asked me this payslip from that. I don't know, because that's a very sensitive information, like social security number, and we don't give, even in America, to anyone. And then they asked me, I gave them license, but they said, no, give us the lease agreement to prove the address. So I thought those are totally irrelevant documents. So yeah, I would suggest that. जी, shall I respond? अच्छा, okay, let me just respond to these 4 questions जो अभी, कुछ तो comment हैं, कुछ question हैं. आप क्या इसमें ग्रामी जावेद साहब आपकी एक तो आपका सजेशन था, मैं कोशिश करूंगा कि कम्युनिकेशन जो है वो ब्रांच लेवल पे ज़रा बेहतर हो जाए ताकि वो चीज़ें आपको बता सकें. मगर there is always room, and I have to accept it, there is always room for improvement. So यकीनन हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है और शायद कभी भी नहीं होंगे, मगर हम बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट के बाद we now become a major force in Pakistan, and that's what we are proud. जहाँ तक आपने LPG का कहा है, मुझे नहीं पता कि आपने उसके लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था और आपको कोई रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला. मेरे ख्याल से वो आपको अप्लाई करेंगे तो हम जाएंगे, हम
किसी के पास, लोगों के पास तो नहीं जाके देंगे ना सर कि आप ये ले लें, यू विल अप्रिशिएट इट। तो कंपनी को डिस्कस कर देना चाहिए ना तमाम कंपनी। नहीं, आप वो उसका वो एडवर्टाइज जैसे पीटीएल कर रही है। जी, वो एडवर्टाइज होता है, जैसे पीटीएल तो आप उसका रिस्पॉन्स दे दीजिए, ठीक है, तो आप कर दीजिए। और अगर, अब मैं उस पर बात करूँगा, अगर कोई आपकी ग्रीवेंस है तो प्लीज ग्रीवेंस रेज कीजिएगा, काउंसिल जनरल के साहब के थ्रू वाया मुझे आप भिजवा दीजिएगा, एंड आई मेक श्योर कि जो आपकी जेन्युइन ग्रीवेंस है वो एड्रेस हो। ये मैं कर सकता हूँ, जरूर अपनी लाइफ। तो मीर साहब ने अकाउंट ओपनिंग की बात की कि वो बड़ा कमरसम है और कुछ इरेलेवेंट। अब मैं जरा थोड़ा लाइटर नोट पे कहता हूँ, जरा अच्छे बैंक के साथ डील करेंगे तो मसला नहीं आएगा। ये पूछे ना जावेद साहब से, वो अच्छे बैंक से डील कर रहे हैं, उनको तो मसला नहीं आ रहा। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लग रही होती हैं कि इरेलेवेंट है, मगर वो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में एट टाइम्स इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द बैंक्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि बैंक्स के पास एक टेम्पलेट मौजूद होती है जिसके तहत वो काम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लाइंस के मामले में नहीं मिलती। एंड व्हेन स्पेशली इट कम्स टू द यूएस नेशनल्स, तो आपकी अपनी सरकार ने यहाँ पर इतनी चीज़ें डिफिकल्ट की हुई है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी किस्म की एक्सेप्शन कर पाएँ आपके लिए, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है सब्सिक्वेंटली, जो आपने एक्सपीरियंस किया है। हैविंग सेड दैट, आप योर पॉइंट इज वेल टेकन। मैं यहाँ पर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप काउंसलेट को अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता दें जो आपके ख्याल से ये डॉक्यूमेंट रिडंडेंट है, मैं राइट अवे तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा, मगर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी टीम को, कंप्लायंस टीम को, ऑपरेशन टीम को दिखा के या तो जस्टिफाई करूंगा कि वो क्यों चाहिए, और नहीं चाहिए तो मैं उसको एजिटेट करूंगा एट द पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के सारे बैंक जो हैं उसको ड्रॉप कर दें। तो ये आपकी तरफ से फीडबैक आएगा तो हम भी इम्प्रूव कर सकेंगे अपने आप। फौजिया जंजुआ साहिबा ने कहा कि किस तरह इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं। फौजिया, आपसे मेरे ख्याल में मेरी मुलाकात हुई है शायद एलए में 3-4 years ago? No. Okay. Similar name though. So मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि अब हमने कोशिश की है कि हमारी हेल्पलाइन बन जाए विद एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट एज वेल। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, मैं गुजारिश करूंगा काउंसिल साहब से कि वो एक पॉइंट पर्सन को अपॉइंट कर दें, मैं वहाँ से कर दूंगा, तो वी विल बी एबल टू टैकल दी इश्यूज। और मैं ये भी करने को तैयार हूँ कि ऑल्दो मेरा जो पॉइंट पर्सन होगा वो बैंक ऑफ पंजाब होगा, मगर अगर कोई और बैंक से रिलेटेड इशू भी है तो वो उनसे टेकअप कर लेगा वाया पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, या मैं काउंसिल साहब के साथ एक बैंक एसोसिएशन का आदमी दे दूंगा, एक बीओपी का भी दे दूंगा, ताकि आप लोगों का जो हेल्पलाइन वाला मामला है वो रिजॉल्व हो जाए। हेल्पलाइन हर बैंक की मौजूद है, मगर मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप इस रूट से आएँ, क्योंकि हम फिर इस पर रिस्पॉन्ड बेहतर तरीके से कर सकेंगे। भट्टी साहब, क्रिप्टो में मैं तो आपको एक थोड़ी सी ना उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूँ। एक तो वो जो है ना, एक मुहावरा है ना कि थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, वो हम कर क्या रहे हैं क्रिप्टो के साथ कि हम जो है ना उसको बच्चे को सिर्फ ये क्रिप्टो कह के ना उसको पोस्ट ऑफिस को क्रिप्टो को कह देते हैं कि वो खराब है। सारा क्रिप्टो खराब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑफरिंग है स्टेबल कॉइन की, वो बहुत अच्छी ऑफरिंग है, हर एक का अपना यूज केस है, और उस यूज केस के हिसाब से अपने आप को पोजीशन आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस में बहुत बड़ा यूज केस है। मैं वैसे से आपको बताना भूल गया, अभी मेरे पास फोन आया था, एंड वी विल होस्ट देम एज वेल। सर्कल which is the largest stable coin USDD वाला, वो coming to Pakistan 4th July के बाद, and we will host them as well alongside with the other stakeholders. Stable coin is clearly a big opportunity and we should not उसको हम क्रिप्टो कह के उसको हम बिल्कुल साइड पे ना कर दें. We should take the advantage of that situation. Crypto is the future. Whether we like it or not, this is the future. We have to embrace it. We can't avoid it. मैंने कल भी ये बात कही थी, मास्टर कार्ड में मेरी प्रेजेंटेशन थी कि एक किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, 1996 में लिखी गई थी डेविडसन एंड रेजमा की, सॉवरेन इंडिविजुअल. वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अब जिस तरह दुनिया जा रही है और जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, हो जाएंगे देन द सॉवरेन, और सॉवरेन उनसे डील करेंगे एट द सेम लेवल.
सॉवरेन की दो पावर है, एक काइनेटिक पावर है और एक इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर कहां से आती है कि देखिए प्रिंट द करेंसी, राइट। काइनेटिक पावर, अगर आपका साइबर के ऊपर कंट्रोल बेहतर है एज एन इंडिविजुअल, यू कैन ब्रिंग द kinetic power to the knees because they will not be able to operate, you will be able to jam their systems. और हमने ये एक्सपीरियंस भी किया 8 मई को जब हमने इंडिया के ऊपर अटैक किया था साइबर का। मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा रोल था in terms of us winning against India. Okay? The other one is the printing of currency. जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी वाला मामला है, अगर अब हर इंडिविजुअल वो करेंसी प्रिंट कर सकता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर हारिस भट्टी जो है उसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा है मेरी नजर में एज करेंसी प्रिंटर देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो मैं हारिस भट्टी की करेंसी लूंगा, मैं आपकी करेंसी क्यों लूंगा? तो लिहाजा मुझे व्हाट आई नीड टू डू इज टू मेक श्योर दैट वी डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, we will embrace it, we will make the regulation in the right way so that we will be able to take the advantage of this situation and promote financial freedom. जी. So will the government back the stable coin like? Yeah, रुपये में होगा ना, जो वहाँ होगा वो रुपये में होगा, यहाँ डॉलर में। तो that's the whole idea कि जब होगा तो फिर it has to be डॉलर बैक, रुपये बैक। But अगर आप नॉर्मल क्रिप्टो की तरफ जाएंगे, जब हमें जाना पड़ेगा तो हमें एक ज्यादा रोबस्ट रेगुलेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर हमें जिस तरह स्टॉक मार्केट में हमने वो लगाए होते हैं ना सर्किट ब्रेकर्स, ऊपर और नीचे के 10% से अगर ऊपर बढ़ गया तो आप रोक देंगे ट्रेडिंग, हमें उस तरह के सर्किट ब्रेकर लगाने पड़ेंगे क्रिप्टो अदर देन स्टेबल कॉइन, सो दैट जो इन्वेस्टर है उसका राइट प्रोटेक्ट हो सके। ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल। थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा विद द आइडिया ऑफ क्रिप्टो। हम उसको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। एम्ब्रेस इट नाउ, अदरवाइज यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम नसीब है, चेयरमैन साहब ने बताया कि ये समर जो है ना पाकिस्तान के नाम पर, और इसके लिए आपने भी पेटेंट किया है। सर माइक करीब कर ले। माइक दो, माइक दो ना क्वेश्चन वाले को। कौन लीड कर रहा है? हाँ अभी आवाज आ रही जी आ रही है। आपकी आवाज ऐसे में पहले भी आ रही थी, वो दिल की आवाज जो थी वो आई रही थी। एक कैमरे पे लगा हुआ है। तो इन्वेस्टर साहब ने बताया कि दिसंबर ये समर आ रहा है, समर का महीना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए इकोनॉमिक लिहाज से। तो अब देखिए पाकिस्तान और जापान इस वक्त इकोनॉमिक लिहाज से हब है टूरिज्म का। तो पिछले दफा इन्वेस्टर साहब से मैंने एक गुजारिश की थी महीने में हर जगह जहाँ कौंसलेट है या एम्बेसी है, एक टूरिज्म सेमिनार रखा जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग वहाँ जाए। और यहाँ पर हम ये हमारे शासन हर महीने में 2 इवेंट करते हैं, 2 एग्जीबिशन करते हैं। यहाँ पर हर तकरीबन पाकिस्तान के अमेरिका के तकरीबन हर सिटी के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर एग्जीबिशन पे हम हिस्सा लेते हैं। और यहाँ तक कि तुसान में सबसे बड़ा जो एग्जीबिशन होता है जेम्सटोन मिनरल का, वहाँ भी हम अपने उससे बलबूते पे अपने अखराजात से करते हैं। अगर इसकी हुकूमत सरपरस्ती करे तो देयर इज नो वे हम इतना रेवेन्यू ब्रेक कर सकते हैं। थैंक यू। और हम अभी हम इस वक्त हम 200 मिलियन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा गिलगित बाल्टिस्तान अस्टोर में, होटल 15-25 रूम्स का। तो आपसे गुजारिश है कि आपका बैंक वहाँ के स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है? जी आप नसीम गिलगित। ओके चलें करीब एडिट कर तो बेहतर तो ठीक ही है। 2 चीजें नसीम साहब, मैं ऑल्दो मैं 3 4 क्वेश्चन लेके, लेकिन आपके सवाल के ऊपर आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके पहले तो आसान वाली चीज बता देता हूँ। बिल्कुल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी और एसएमई में भी जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी नंबर 1 बैंक इन गिलगित बाल्टिस्तान इज वेल। सो वी आर डूइंग आवर बिट देयर।
There more need to be done. I'm not disputing it, but we're doing our bit. Number one. Number two, आपने देखिए सर ये माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा कि जी सरकार कुछ कर ले और सरकार ना कर ले। आप छोड़ें सरकार को सर, हम सब मिलके कुछ कर लेते हैं ना। Why are we looking at the सरकार all the time? तो रहेंगे सर, उसको छोड़ें। आप नेक्स्ट टाइम जब जा रहे हैं आप हमसे बात कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं आपके साथ किसी और को भी ले आऊं, मैं OGDC से भी कुछ स्पॉन्सरशिप करा दूं, हम चलेंगे ऐसा प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे। छोड़ें गवर्नमेंट को, कहाँ हम उनके पीछे पड़ेंगे। एम्बेसडर साहब से भी रिक्वेस्ट कर लेंगे हमारी कुछ हेल्प कर दें, मगर उस पर रिलाय मत करें। आप खुद अपना चांस लें, पैसे इकट्ठे करें, विल सपोर्ट यू, विल गो विद यू। जी मैं कह रहा हूँ उससे, आप जो अभी कह रहे थे ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, कोई और भी नहीं चाहिए, छोड़ें उसको जी। हमारी ताई जो हो सकता है उसको तो करें ना, ठीक है, और हम आपके साथ काम करेंगे। मैं अपनी कोशिश करूंगा, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो मेरी विसात में है, मैं उसको लेके आऊँ और आपसे उसके ऊपर आगे लेके हम चले। आपने मुझसे वो GB के टूरिज्म की बात की, आप स्टेप लीजिए, आप अनाउंस कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए पाकिस्तान से, मैं खुद आ जाऊंगा उसके लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। आपको और कोई स्पीकर चाहिए हम वो भी अरेंज कर देंगे आपको, मगर वो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। You have to showcase Gilgit-Baltistan. Don't rely on anybody back home to do it. आप लीजिए initiative, we'll support you whatever way is possible. This is my commitment to you. 2024 को हमने यहाँ से 26 पुलिस ऑफिसर लेके गए थे गिलगित-बल्तिस्तान। जी। और अभी तक वो वहाँ पर वो रोड ब्लॉक हुआ था, तकरीबन एक पूरा दिन सकरतुल की गिलगित जो है वो वहाँ फंसे रहे। जी। तो इस रोड का जो है सर, अब ये इस कहानी में ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर इस मुल्क में आए थे, उनको 7 घंटे एयरपोर्ट में बिठा के रखा हुआ था। ये सब जगह होता है। देखिए इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एक एग्जाम्पल उठा के आप कह रहे हैं 50 आदमी आए तो सुकून से चला भी गया है ना। ये तो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, 7 घंटे एयरपोर्ट में बिठा के रखा, कुछ नहीं कहा, उसके बाद आप चले जाओ यार। शाहरुख खान, वो दूसरा भी पाकिस्तान का शाहरुख खान ही था जिसके साथ ये हुआ। जी कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीक कादरी है। मेरा एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है। कमेंट ये है कि यू टुक ऑफिस एज CEO इन अप्रैल 2020 और अगले ही महीने मई 2020 में PIA की फ्लाइट PK 8303 क्रैश हुई, 2 पैसेंजर बचे। यू आर वन ऑफ द लकी वन। तो अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान की खिदमत के लिए ही जिंदा रखा। मेरा क्वेश्चन ये है कि माय सन इज US सिटीजन, अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं, हिज वाइफ इज स्टिल इन पाकिस्तान सिटीजन, तो क्या वो जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए क्वालिफाई करेगी? आपकी वाइफ जो है वो नहीं मेरे बेटे, मैं तो भी बहुत बूढ़ा हो गया। मेरा बेटा माय सन इज US सिटीजन, ही इज लिविंग इन न्यूयॉर्क। ठीक है, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है अपने कजन के साथ, पाकिस्तान में है बच्ची वो। सर ये क्या किया वो अलग डिस्कशन है, इनहेरिटेंस। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चा US सिटीजन है, अप्लाई किया हुआ है बच्ची के लिए, मे बी विद इन अ ईयर और 2 वो बच्ची आ जाएगी, लेकिन बेटा अगर अकाउंट खोलता है US सिटीजन और उसके पास वो नाइकॉप भी है, तो द गर्ल सिटिंग इन पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन कैन बी एडेड एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर विद माय सन। ठीक, थैंक यू। Before next question, I have an announcement. We also have participants from different consulates. Zorez, 1 minute. We're sharing a number 646-571-9508. The number is 646-571-9508. तो अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के कोई सवाल हैं वो इस नंबर पे शेयर करें ताकि हम वो मसूद साहब के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल एम्बेसडर साहब से है। इसमें ग्रामीण राजा साहब, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे सेमिनार करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करें, मगर बदकिस्मती से ये अभी नहीं, कई डेकेड से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बड़ी मुश्किल बना दी गई है। इतनी रिक्वायरमेंट्स है कि कोई बदकिस्मती से इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचता है। मेरा अपना कज़न है, उसने इस्लामाबाद में क्लब रोड पे 60 कनाल की ज़मीन खरीदी कि उस जगह पे वो होटल बनाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 60 कनाल की कितनी कीमत होगी।
2025 में उन्होंने CDA से होटल के लिए अप्रूवल भी ले लिया और अब जो है वो CDA के आगे ख्वार हो रहे हैं। तकरीबन अनदर 80 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो रेडी है। तो सर क्या किस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर कौन जो है वो उस तरफ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट को जो है वो इजी कब किया जाएगा? थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, इसमें रईसत बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट रिजीम है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी रीजन के साथ जिसमें हम हैं और उसमें देखेंगे तो शायद वो आपको अगर बेहतर नहीं है तो कमतर भी किसी चीज़ से नज़र नहीं आएगी। लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि चीज़ों में जैसे ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि बेहतरी की गुंजाइश होती है और वो इसी किस्म के वाक़यात जहाँ पे हिकअप्स आते हैं, जहाँ पे कोई मसला होता है और जब वो एक इक्का दुक्का वाक़यात से बढ़ के वो एक सीरीज़ सी बन जाती है, नज़र आता है कि 8-10 ऐसे लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं जो एक ही किस्म के वाक़यात से दो चार हैं। तो ख़ासकर जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है उसमें पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा मसाइल है, इससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पंजाब के सूबे से ही शुरू करके और बाकी जो हमारे सूबे हैं उनमें जाते हुए एक तो इस किस्म की चीज़ों को डिजिटाइज़ किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है डिजिटाइजेशन का जिसमें हम एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट पे आ जाएंगी, ह्यूमन एलिमेंट कम हो जाएगा, फेसलेस जैसे फरमा रहे थे ज़फ़र मसूद साहब, बैंकिंग भी फेसलेस हो जाएगी, FBR भी फेसलेस हो जाएगा और चीज़ें ये सारी फेसलेस हो जाएंगी। तो एक तो जो तकनीकी आपके पास मौका मौजूद है, जो टेक्निकल एक अपॉर्चुनिटी है, उसको इस्तेमाल करने से इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं, जो शिकायत हैं, उनके लिए पहले भी निज़ाम मौजूद है। आप कौंसल जनरल साहब के थ्रू भी जा सकते हैं, सिफारत खाने के थ्रू भी जा सकते हैं। जब मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे आके आपसे मदद मांग रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका छोटा बड़ा कोई ज़ाती काम होगा इस सिलसिले में तो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर मैं आपके सामने बैठ के जिससे बात करनी होगी खुद बात करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि उस मसले को हल जी। मैं ज़रा इसको ज़रा बढ़ा लूँ, हालांकि आपने सवाल तो मुझसे पूछा था। थोड़ा सा ना हमारी जो सोसाइटी है वो बड़ी पर्टिकुलरिस्टिक सोसाइटी है, देन यूनिवर्सल सोसाइटी दैट वी आर ऑपरेटिंग। पर्टिकुलरिस्टिक सोसाइटी के अंदर ये इस तरह के हिकअप्स होते हैं, इस तरह अभी अम्बेसडर साहब ने बात की, वहाँ इंडिविजुअल का कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी है तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू ग्रेजुएट टुवर्ड्स द यूनिवर्सल सोसाइटी, बट वी आर नॉट एट दिस पॉइंट टाइम। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं। दूसरा, मैं आपको एक यकीन से कह दूँ बात, मुझे नहीं पता उस केस का, यकीन माने आपके कज़न का भी कोई 10-15-20% ज़रूर कसूर होगा उसके लिए, और वो भी इसको ब्लो अप कर रहा होगा। मैं इस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता। नेवरदलेस वो पर्टिकुलर केस पता लगेगा ना तो वी कैन टॉक अबाउट इट एंड टेक इट फॉरवर्ड। मैं सिर्फ आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतनी कंप्लेंट्स मेरे पास आती है जब मैं प्रूव करता हूँ, यकीन माने मेजॉरिटी के अंदर उनका अपना कसूर होता है। या तो वो गलत वो डाल रहे होते हैं, पिन कोड डाल रहे होते हैं, या वो अपना पिन कोड किसी से शेयर कर चुके होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इस केस में होगा। नेवरदलेस थोड़ा सा लीवे देखिए, जरा ट्राई करके देखिएगा। राय साहब, मुझे काफ़ी यकीन है कि शायद आपके कज़न का भी थोड़ा कसूर हो सकता है, लेकिन कोई मैं उसको ये नहीं कह रहा कि CDA को बड़ा इदारा ऐसा है कि जिसमें गलती नहीं होगी, वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। वो अम्बेसडर साहब देख लेंगे और विल टेक इट ऑन। बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, अभी जब देखें कि जिस तरह के हालात हमारे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ईरान का, अमेरिका का, तो पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कराची को, ग्वादर को रिवाइव करने का। तो मेरे एक अम्बेसडर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ पे बात हुई थी। तो मैंने कहा जी ये अपॉर्चुनिटी आई है पाकिस्तान के पास, क्या पाकिस्तान ये यूटिलाइज कर पाएगा?
तो उन्होंने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चलने नहीं देती। So the bureaucracy is the problem. ऊपर चीजें बेहतर है मगर नीचे जो है ना बदकिस्मती से वो। सर मैं गुजारिश करूँ आपसे, बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है। यकीन माने प्रॉब्लम जो है ना खाली ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हम भी एट इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम है। हम भी जो है ना वो ब्यूरोक्रेट को अलाउ करते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट बने। आप उसको चैलेंज करें ना, आप जाएं इंडिविजुअल लेवल पे उससे बात करें। हम भी ये काम नहीं एफर्ट करना चाहते, एक्स्ट्रा माइल देना चाहते। सोसाइटी जो ट्रांसफॉर्म की है ना वो इंडिविजुअल के इनिशिएटिव से ट्रांसफॉर्म हुई है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं करते। प्लीज इसको जरा हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। एम्बेसडर साहब ने आपको हाथ दे दिया है, मैंने एम्बेसडर साहब को कहा है कि हमारा हाथ वहाँ मौजूद है ऑन द ग्राउंड, जो भी हम कर सकेंगे हम जरूर करेंगे आपके लिए। वैसे आपको, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का, हम भी फॉरेन सर्विस भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, और वो हमें पाकिस्तान में नहीं समझते, हमें समझते हैं कि आप बाहर हैं। लेकिन मैं आपको वैसे मजाक में एक बात सुना दूं कि एक दफ़ा मेरे रिश्तेदारों में बात हो रही थी और इसी तरह कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी ने ये कर दिया और ब्यूरोक्रेसी ने वो कर दिया। तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैं सराइकी हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि जी आपने लफ्ज़ ही गलत समझा हुआ है, आप तो इतनी तनकीद हो रही थी, अब मैं कहाँ जाता। तो मैंने कहा ये लफ्ज़ जो है ये सराइकी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बुरा करेसी। अच्छा सर, ये जो अतीक साहब ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਆਈ ਡੋंट सी इट अ प्रॉब्लम देयर बट आई नीड टू गो बैक। मैं आपको फ्लिपेंट जवाब नहीं देना चाहता, लेट मी जस्ट डू सम रिसर्च ऑन दिस। मुझे इसमें फेस पे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि वो अकाउंट ज्वाइंट क्यों ना खोल सके, सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि पैसे बाहर से आने चाहिए। जी जी जी, तो वो लोकली नहीं डाल सकेंगे पैसे, वो बाहर से आना होगा। मगर मुझे ये उम्मीद है जी, पैसे वहीं से आएंगे बाहर का। जी जी, वो मुझे पता उसकी रिक्वायरमेंट है आरडीए की, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट लोकल के साथ हो सकता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। नेवरदलेस अगर आप प्लीज ये काउंसलर को अपना डिटेल्स दे दें जी जी, तो मैं आई गेट बैक टू यू कि ये हो सकता है। और मुझे अगर वो बता भी दें स्पेसिफिकली कि आपको चाहिए, वहां का नंबर भी दे दें, यहाँ का नंबर दे दीजिएगा अपने बेटे का, विल स्पीक टू हिम एंड ट्राई एंड गेट दैट रिजॉल्व। जी, तो कोई तरह मटेरियल इशू नहीं है। एक चीज जरूर है बाय द वे जी जी, वो ये कि मुझे नीड समझ में नहीं आ रही कि जॉइंट अकाउंट की नीड क्या है। अजी उसका जो लीगल केस है वो स्ट्रेंथ होगा, इट विल शो द बॉन्ड एंड शेयरिंग द एसेट्स, तो भी स्ट्रेंथ होगा। प्लस या वो कभी किसी के थ्रू भेजता है, कभी किसी के थ्रू, इट विल बी अ प्रॉपर वे, लीगल वे। डन जी सर, थैंक यू। Before we move to next question, I have an online comment for Zafar Saab. This comment is from Mr. Fahad Ashmi and he has a suggestion. He says that RDA has attracted 12.6 billion in diaspora capital, almost all sitting in sovereign debt. The infrastructure and repatriation guarantee already exists. The missing piece is extending that same framework to vetted export-oriented SMEs, giving diaspora investors real equity stakes in Pakistani businesses, especially the opportunities presented by Zafar Saab and not just a government paper. जी, ये मेरी फहद साहब जो है ये मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ बी वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ बात होती रही है ट्रांसपेरेंसी की और ऑनेस्टी की, तो मैं पहले डिक्लेयर कर दूँ फहद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। यहाँ आने से पहले उनसे बात भी हुई थी, मेरा ख्याल है हम उनको सुन नहीं सकते, तो मैंने उनसे कहा था उनको प्रॉम्प्ट करूँगा और वो जो उनने प्रोपोजिशन आपको दी एसएमई की वो मेरे पास लेके आए थे। मैंने उनसे कहा कि बैंक ऑफ पंजाब विल वर्क विद यू एंड सी हाउ वी कैन कैपिटलाइज ऑन इट। एज मैंने एक्चुअली उसको डाला था पहले इसके अंदर, मगर वो मैंने फिर बाद में निकाल दिया स्लाइड को क्योंकि वो फिट इन नहीं हो रहा था विद ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। नेवरदलेस दैट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स। एम्बेसडर साहब ने वो इनिशिएटिव लिया हुआ है एंड विल वर्क विद फहद साहब एंड एम्बेसडर साहब टू सी हाउ हम उसको डेवलप कर सकते हैं रोशन डिजिटल। Fahad Saab wanted to be here, but he's based in tri-state area. He wanted to be here, but for reasons of preoccupations and prior commitments, he couldn't be here. But yes, this idea that he has just shared in this comment is with us, and we will probe it fully and try and make it happen. It's actually in the works. Indeed.
प्लॉट देखा था तो अपना ट्रांसफर करना चाह रहा था, तो उस वक्त अलाउ नहीं था पाकिस्तान से मनी ट्रांसफर करना या उससे पहले जब मैं गई थी भेजा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी आपकी क्या पॉलिसी है अगर पाकिस्तान में कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और अपने पैसे यहाँ लाना चाहता है, तो अभी गवर्नमेंट उसके दो तरीके हैं उसके। एक तरीका तो ये है कि आपको अलाउड है पैसे भेजना, मगर वो आप भेज सकती हैं सिर्फ $1 लाख तक 1 साल के अंदर। और वो अगर आप उसको फॉर एग्जांपल आप एज एन इंडिविजुअल आपकी $1 लाख की लिमिट है, भट्टी साहब की $1 लाख की लिमिट होगी, हारिस ने भी अकाउंट खुला दो, वो फिर एक और हो जाएगी, तो आपके पास इतना डिसेंट अमाउंट हो जाएगा कि आप 1 साल में उसको $10,000 करके $20,000 करके लिमिट कर सकते हो। तो एक ये तरीका है, थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है बट नेवरदलेस इट इज़ देयर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आए स्टेट बैंक को अप्लाई करें और स्टेट बैंक से ये कहें कि आप हमें रेमिटेंस अलाउ करते हैं, प्रूविंग द फैक्ट दैट यू सोल्ड द प्रॉपर्टी एंड यू आर अ लोकल रेजिडेंट एंड यू नीड द मनी आउटसाइड पाकिस्तान। Chances of State Bank responding to you is slightly sketchy and low. Therefore, I would recommend to find a way for the second one, first option rather than the second option. मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आप को हुकअप करवा दूँ अपने बैंक में। आपके पास नंबर भट्टी साहब का मेरे पास मेरा नंबर है, मैं हुकअप करवा दूँ आपको, फिर पैसे हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको रिमिट करवा देंगे यहाँ पर थ्रू द ऑप्शन नंबर। पाकिस्तान में पंजाब बैंक के जितने एम्प्लॉई हैं और पंजाब बैंक जो है पाकिस्तान में, इनकी कोई क्या प्रोग्राम्स हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट के जैसे लोग प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो वहाँ पे हम पैसे आपके वहाँ इन्वेस्ट कर लें, और कोई जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इस किस्म का क्या आपका कोई प्रोग्राम है? अगर जी मैं कोई प्रोग्राम है तो वो भी जरूर बताएं। आपका क्या कैसे है कि बैंक ऑफ पंजाब में कितने एम्प्लॉइज होंगे? मैं जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। वो आप बताएं। नहीं, आपका क्या ख्याल है बताएं? उसकी वजह है लोगों के ज़हन में शायद अभी तक ख्याल नहीं है कि बैंक ऑफ पंजाब बहुत छोटा बैंक है और कितनी ब्रांच है। हाँ एग्जैक्टली ये मेरा ख्याल था। और ब्रांचेस कितनी होंगी आपके पास? ब्रांचेस कितनी होंगी आपके? और हमें भी 100 पंजाब 300 400 500 300 बाकी पूरे पाकिस्तान में कम से कम कुछ नहीं तो 2000 तो 2000 तो टोटल ब्रांचेस नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब की 900 ब्रांचेस हैं और 15,000 एम्प्लॉइज। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान, नंबर 1 जो मैंने आपको पीछे बताया। वी ऑफर एवरीथिंग अंडर द सन फॉर द इन्वेस्टमेंट। 5 का था नहीं 15 का था। अच्छा चल, मैंने 5 सुना था, मेरी गलती है। बट नेवरदलेस आपकी जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भट्टी साहब का मेरा नंबर मौजूद है। ये दोनों चीजों पर मैं आपको लोगों से हुकअप करवा दूंगा, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पिच करके इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प। वैसे मैं एक वाकया सुनाना चाह रही हूँ कि जब मैं वहाँ पे 35 ईयर पहले आई तो बैंक ऑफ लाहौर में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने प्लॉट बेच रहे थे, बैंकिंग सोसाइटी बनाई थी पंजाब में। तो मुझे बैंक से मिले पैसे उस वक्त 1 लाख रुपए बड़ी चीज होती थी 35 साल पहले। तो मैंने यूपीएम से मुझे 1 लाख रुपए मिला। मैंने लाहौर में बैंकिंग सोसाइटी के नाम से एक कनाल का प्लॉट लिया और फिर आज ये हुआ कि कुछ अर्से के बाद 10 साल गुजरने के बाद वो प्लॉट जो है ना आधा कनाल रह गया, फिर उसके बाद और वो आज तक प्लॉट जो है ना एक कनाल का 35 साल में आधा कनाल। देखिए मैं आपको वैसे बताना मगर मैं आपको इसका जवाब ये दे दूं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस तरह आइसोलेशन में बात करें, उसके पीछे क्या रियलिटी है, वो क्यों कटा, किसने नहीं दिया, आपने चार्जेस दिए थे नहीं दिए थे, मेरे लिए उसके बगैर कहना मुश्किल होगा। नेवरदलेस ये अक्सर वहीं रहते हैं और उसका बैंक ऑफ पंजाब से बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है वो सब। जी बिल्कुल जी सर आप inspirational speech by you. I have recorded that, and with your permission, I would like to play that in my space tonight, inshallah. There are 700-800 people, listeners on my space every evening. I need your permission for that. My permission? Yes, sir. I recorded your speech. Okay. And I would like to play it
to the Pakistani and the other listeners on the Twitter space tonight. Sure. Thank you. अगर रिकॉर्डिंग से पहले पूछ चले थे I don't know whether that's why I asked your permission, sir. Thank you. Honorable President, sir, you made an excellent presentation, very impressive. And इससे हम लोग बहुत उसको स्क्रीन शॉट नहीं लगा रहे आप, वो रिकॉर्ड नहीं किया आपने। जी वो तो रिकॉर्डिंग के काबिल थी वैसे भी। वो हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप स्पेस पे काइंडली हाँ डिसेमिनेशन हो गया, ठीक है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ सर, मैं आपका ध्यान किसी और तरफ दिला दूँ। The aspect that I didn't आपका इसमें see in your presentation. मकबूल साहब। जी मकबूल मलिक। जी जी। I am a defense contractor. My entire career has been defense industrial complex. आपकी सारी प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान का जो एक लेटेस्ट पोटेंशियल जो रजिस्टर हुआ है, दैट इज द डिफेंस ट्रेड। आपने कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है कि फ्यूचर के अंदर जो हमारी डिफेंस ट्रेड होगी उसको या तो स्टॉक मार्केट के अंदर किसी तरह से जो हमारे मेजर डिफेंस प्रोवाइडर्स हैं, इक्विपमेंट के हमारी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और उसकी तरफ से कोई इस तरह के स्टॉक्स हों, या अमेरिका में जिस तरह होता है कि इनकी जितनी डिफेंस प्रोडक्शन है, जितनी ट्रेड है, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ साथ आप देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स में है। कोई इस तरह की इंकरेजमेंट आपको आपकी नज़र में है जो कि गवर्नमेंट कर रही हो या आप कर रहे हो, इसलिए कि हमारा इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। थैंक यू। We are working on a study to establish a 500-bed hospital tertiary care in Pakistan. The question I have for you, because you are associated with the Bank of Council as well as AOP, do you offer debt financing for these kind of projects? Number one. Number two, if you are willing to do the equity investment in that kind of project, because you know that healthcare public trust that is in Pakistan. Thank you. जी हम जो अभी ये नोवा के जो लगा रहा है मेपल लीफ में कोहिनूर ग्रुप जो लगा रहा है, वी आर द वंस हु रेज द मनी, वी आर द लीड बैंक देयर। इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट लगा था वो एशवुड लगाया था, वी वर द लीड बैंक देयर, वी डिड द फाइनेंसिंग, वी विल बी हैप्पी टू डू द डेट। Equity is not our space, we will not take the equity, but equity we will not do, but debt we are very happy to look at. Equity के लिए आपको बहुत सारे बाकी लोग मिल सकते हैं, BII है यहाँ पर, एम्बेसडर साहब बड़ी तकदो कर रहे हैं to bring DFC and USTD, EXIM. I have seen they do offer equity investment. जी. However, the issue is that they do not offer the green projects. That's the problem. They don't offer the on the green projects. Startup projects में नहीं करते वो. स्टार्टअप को उसके अलावा और मिल सकते हैं आपको, थोड़ा सा आपको उसको शेख साहब रैप करना पड़ेगा अराउंड यूएस ऑफरिंग। ये अभी एक और केस में एम्बेसडर साहब उसको देख भी रहे हैं, अगर आप उसको रैप अराउंड कर दें इन द यूएस ऑफरिंग तो आई थिंक यू विल बी एबल टू रेज सम काइंड ऑफ equity from here. Debt will be happy to talk to you and see how we can assist you on the debt side. It's not a problem, we'll be happy to look at it. I'll get you connected with our investment banking team. मकबूल साहब आपने बात की SME की, हमारे जितनी ये स्कीम्स हैं, इसका मैं आपको सनतकारी स्कीम की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई ममानियत नहीं है कि वो अगर डिफेंस से रिलेटेड है तो हम नहीं करेंगे, उसमें सारे लोग कवर हो गए, 1 अरब से लेकर पहले 10 करोड़ से लेकर फिर 1 अरब और फिर 5 अरब तक वो कोई भी उसमें आ सकता है। सिर्फ उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है, और वो बाय द वे 5% फिक्स्ड रेट पे होगा 10 साल के लिए, मगर उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो या तो एक्सपोर्ट रिलेटेड हो या इंपोर्ट की वो रिप्लेसमेंट हो, तो हम उसको देखने को तैयार हैं। और उसके लिए सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो पंजाब में प्रोजेक्ट होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। दैट्स ऑल। Ladies and gentlemen, thank you for the engaging discussion. As we come to the conclusion of the formal proceedings, I would like to thank our distinguished speakers,
and all of you and the Bank of Punjab team as well for organizing our Please mention if there are still questions, particularly with those online. Please share them and we will get the answer. Yes, and as Ambassador Saab mentioned that if you have further questions, the team is here to network and answer those, and for our online participants, they can always share further questions for the Bank of Punjab team as well as the consulate team. With that, I would like to thank you. Your presence and engagement have contributed greatly to the success of today's event, and I now invite everyone to join us for dinner. Thank you and have a pleasant day.